सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। मैं थोड़ा बीच में आते जाऊंगा यहाँ पर एडमिट करने के लिए कुछ लोगों को। ओके, सो डेफिनेशन इज द रिएक्शन इन विच rate of reaction depends upon molar concentration of only one reactant is called as first order reaction. According to rate law, if we consider the reaction A gives product, according to rate law, as it is a first order reaction, rate of reaction is equal to minus dA upon dt, which is the rate of reaction, and it is directly proportional to concentration of reactant to the power 1. Minus dA upon dt is equal to K concentration of reactant A, where K is the rate constant. इनको अरेंज करते हैं, सिमिलर टर्म्स हम लोग एक साइड में ले लेते हैं। जब सिमिलर टर्म्स हम लोग एक साइड में ले लेते हैं, वन साइड में हम लोग सिमिलर टर्म्स अगर ले लिए तो ये इधर नीचे आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा के dt। फिर हमने एक कंडीशन रखी कि शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, मतलब टाइम वाज 0, तब concentration of reactant was A0. After certain time, the concentration of reactant becomes A of t. अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन विद इन अ लिमिट। सेम एक्सप्रेशन है, dA upon A is equal to minus K dt। इसी को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग अबव एक्सप्रेशन dA upon A integration A0 to AT is equal to minus K dt 0 to t, because when the concentration was A0, तब समय कितना हुआ था 0। t समय बीत गया, t समय बीतने के बाद concentration बचा AT, एंड बेसिक इंटीग्रेशन हमें पता चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x is equal to log to the base e of x. According to that, अगर हम लोग इंटीग्रेट करते तो dx upon x is the log of x, तो dA upon a क्या होगा, इट इज log of a बेस e। लोअर लिमिट है a0, अपर लिमिट है at, which is equal to, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के कांस्टेंट है तो के बाहर निकल जाएगा, एंड बेसिक है dx का इंटीग्रेशन आता है x, एंड ये डेफिनेट इंटीग्रेशन प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि यहां पर लिमिट है, सो दिस विल बी t0। सॉल्व करते हैं, कुछ भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग जो करते पहले अपर लिमिट करते फिर लोअर लिमिट करते हैं, सो दिस विल बी log to the base e of at upper limit minus log to the base e of a0, which is equal to minus k upper limit t minus 0। सॉल्व करेंगे, log a minus log b, this is log to the base e a of t upon a of 0, log a minus log b as per laws, log a minus log b is log a upon b, which is equal to minus k t minus 0 is t। सॉल्व करके इसको रीअरेंज करते हैं, हमें रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है ना, तो रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, इसको यहीं पर रखते हैं, या और आसान कर दो थोड़ा सा, बाद में गड़बड़ होने के बजाय आप माइनस साइन अगर हटा देते हो तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, मींस व्हाट, you can write log to the base e
A of 0 upon A of t is equal to 80. सर ये नीचे सर ऊपर पाव कैसे हुआ नहीं समझ में आया. ओके सर if it is log A by B then you can write minus log B upon A. अगर log A upon B होता तो आप minus log B upon A लिख सकते हो. ये लॉ है. So log 80 upon A 0 था, उसको मैं रिवर्स कर दूं तो माइनस आ जाएगा. माइनस ऑफ माइनस कैंसिल्ड. ये एक्सप्रेशन आ गया. इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, रीअरेंज करते. सॉल्व क्या करना, रीअरेंज करते हैं. इसको रीअरेंज हम लोग करते हैं. ध्यान दीजिए प्लीज. लास्ट स्टेप में हम लोग आ रहे हैं. I can write this k is equal to t, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 by t log to the base e a of 0 upon a of t. A of 0 upon a of t. सुनो, the base is e, that is the exponential base. हमें exponential base नहीं चाहिए because in the number system we are dealing with decimal number system, that is from 0 to 9. So for the decimal number system, instead of e you need 10. How to convert? See, if you wanted to write log to the base 10 instead of e, then you have to multiply by 2.303, and therefore the final expression will be k is equal to e के बजाय मुझे 10 लिखना है तो I have to multiply by 2.303 upon t log to the base 10 a of 0 upon a of t. This is the final expression for rate constant in case of first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइनल एक्सप्रेशन ये है. यानी बोर्ड में पूछा गया derive an expression for rate constant in first order reaction, हमें ये लिखना पड़ेगा. मैं एज पर मैं आदत में रिपीट करता हूं. क्वेश्चन आंसर हेडिंग डेफिनेशन. The reaction in which rate of reaction depends upon molar concentration of only one reactant is called as first order reaction. Consider the reaction A gives product. Then according to rate law, R is equal to minus dA upon dt, which is the rate of reaction, which is directly proportional to A to the power 1 by 1, because the order of reaction is first order. Proportion निकाल दिए k. What is k? It is rate constant. Similar terms rearrange करते हैं. a नीचे आ गया, dt ऊपर, माइनस उस साइड. Then we are thinking about the condition. Initially when time t was 0, 100% वहां पर reactant था A0. कुछ देर के बाद t निकल गया वहां से, t समय चला गया, तो नेचुरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा. एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम हुआ, कितना बचा? 80 इज द बचा हुआ अमाउंट आफ्टर टाइम t. एंड बाय कंसीडरिंग दिस लिमिट, लेट्स इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन. सो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन a0 to 80, 0 to t. जब इसको हमने सॉल्व किए तब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बेसिक इंटीग्रेशन dx upon x log x, तो यहां पर log a आया, बेस e होता है. इंटीग्रेशन dx x है तो इंटीग्रेशन dt t होगा, t अपर लिमिट लोअर लिमिट. पहले अपर लिमिट सबमिट करते हैं, बाद में लोअर लिमिट. अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट. सॉल्व करो. log a minus log b is a log a upon b, which is equal to minus 80. सॉल्व कर दिए
log a0 by 80 this is equal to kt। k के एक्सप्रेशन चाहिए, t डिनोमिनेटर में चला जाएगा, चला गया log to the base a0 upon 80, log to the base 2.303 log सर ये कहां से आया? As we are using the decimal number system, it is must to convert the exponential base into decimal base, and for that conversion the converting factor is 2.303. Convert it, solve it. Instead of e, when I substitute 10, I have to multiply by 2.303. Therefore the final expression is for first order reaction k is equal to 2.303 upon p log to the base 10 a of 0 upon a of t। हाँ, आपको इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी दिखेगा, वो भी लिखे आपने आगे तो चलेगा। सी इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज a moles per dm cube, initial concentration moles per dm cube, and after certain time t, after t, let x mole per dm cube reacts। t समय के बाद x मोल पर डीएम क्यूब रिएक्ट। अब सुनो, मैंने मार्केट में 100 रुपए लेके गए, 25 रुपीज खर्चा हो गया, 100 रुपए लेके गए, 25 रुपीज खर्चा हो गया, बचे कितने? 100 रुपीज माइनस 25 रुपीज मीन्स रिएक्टेंट लेफ्ट रिमेन्स कितना होगा? इट इज a माइनस x मोल पर डीएम क्यूब। और इसलिए अगर मुझे दूसरे फॉर्मेट में ये एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो मैं इस डब्बे में लिखता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे जगह खाली दिख रही है, कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज इंपॉर्टेंट, k इज इक्वल टू 2.303 upon t log to the base 10, एक्चुअली होना चाहिए a of 0 means the initial concentration, initial concentration कितना है अपने a, तो it is a upon 80 the concentration of reactant remains after time t, how much remains? a minus x। ये फॉर्मेट भी आप देख सकते हो सकता है पेपर में इस टाइप का फॉर्मेट पूछा जाए, नहीं तो उस टाइप का फॉर्मेट पूछा जाए, ये और ये। बट दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डेरिवेशन में कुछ दिक्कत अगर है, कुछ डाउट है, चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चन डालिए। अगर डाउट नहीं है, 4-5 लोग भी अगर सर ओके ये डाल देते हैं तो हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कोई डाउट अगर डाउट नहीं है तो ओके करके डाल दीजिए, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम वेरी गुड, ओम भगत तो लोअर ओके हो गया, गुड। सरफराज एक्सेलेंट, हर्षल, गूगल, खुशहाल, तेजू। सर राइट हैंड साइड का दिख नहीं रहा, राइट हैंड साइड ही नहीं, ये वाला राइट ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है राइट हैंड साइड एकदम क्लियर, राइट हैंड साइड का। ओके गुड 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 गुड। काय बोल रहे? ओके वाओ ग्रेट, गुड गुड। ठाकरे मैडम वेरी गुड, चलो गुड, राइट। सो ओके, राइट साइड का दिख नहीं रहा, राइट हैंड साइड मतलब मेरा राइट हैंड साइड, मेरा राइट हैंड साइड मतलब ये तो क्लियर है पूरा, ये बाउंड्री क्लियर है। ये मतलब यहाँ पर जो है दिस इज मोल्स पर डीएम क्यूब, यूनिट लिखा है मोल्स पर डीएम क्यूब। ओके गुड, डन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट। ओके, अब जादू का प्रयोग देखिए, पता है आपको, ऐसे में जैसे घुमाऊंगा गायब हो जाता है। वाह ग्रेट, गायब हो गया।
आगे बढ़ते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग सुनिए, हम लोग अगर खाना खाने बैठे तो कभी ना कभी खाना तो आधा होने वाला है। खाना भी क्या है, खाना खाना यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के प्रकार है। रिएक्टेंट हमारे सामने रहता है, कंज्यूम करते रहते हैं, तो रिएक्टेंट का परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाता है, एक टाइम पे आधा तो होगा। ये रिएक्शन भी ऐसी है। When you consider the reaction A gives product, ये कोई तो भी रिएक्शन मैंने कंसीडर की। अब इस रिएक्शन में मुझे डिटरमाइन करना है एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट दैट इज K एंड हाफ लाइफ टाइम T हाफ। सर ये नया चक्कर हाफ लाइफ टाइम क्या है? हाफ लाइफ टाइम, the time required to complete half of the reaction is called as half life time. कोई भी रिएक्शन को आधा होने के लिए जो समय लगता है, that समय is called as a half life time. The time required to complete half of the reaction is called as half life time. उसे हम लोग half life time कहते हैं। आधा होने के लिए लगने वाला समय is a half life time. The time in any reaction, मन में आ रहा है सर कौन से ऑर्डर के लिए, किसी भी, the time required to complete half of the reaction is called as half life time. Let's see the relation. Consider the reaction A gives product is first order reaction. For this first order reaction, we know K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A of 0 upon A of T. ये हमें पता है। कंडीशंस हमने लिखी थी, वो भी मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो आवश्यक है यहां पर। when T is equal to 0, शुरुआत में जब रिएक्शन होने की है, तो रिएक्शन अगर होने की है तो रिएक्टेंट तो पूरा 100% ही रहेगा। concentration of reactant was A0. after that certain time बीत गया, तो आफ्टर टाइम T concentration कितना बचा, A of T, and after T half, मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा, 20 साल के अनुभव से उतना तो समझ में आ गया है कि आपका आंसर क्या होगा, पता है सर 80/2। हाँ, after half life time the reaction completed half 50%, इस शुरुआत में जितना था उसका आधा, शुरुआत में कितना था A0, उसका आधा, अब कितना बचा है, कंसंट्रेशन जो 80 था वो 80 नहीं है, अब है जो A0 था शुरुआत में उसका आधा। हो, जिसको समझ में नहीं आया बस वही यहाँ पर चैट बॉक्स में कमेंट करें, समझ में नहीं आया तो, कि सर हाफ लाइफ टाइम के बाद A0/2 कैसे हुआ, जिसको समझ में नहीं आया वही कमेंट करें, समझा तो कुछ मत करो। फिर से बता रहा हूँ एक बार, शुरुआत में जब T 0 था तो शुरुआत में कंसंट्रेशन था A0, जब टाइम T बीत गया तो कंसंट्रेशन 80 बचा। हाफ लाइफ टाइम के बाद इनिशियल अमाउंट का आधा होता है, तो इनिशियल अमाउंट A0 था, उसका आधा हुआ यानी A0/2 बचा। तो ये वैल्यूज अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करते हैं, K is equal to 2.303 upon T half। A0 था,
t टाइम के बाद at बचा, अब t हाफ बीत गया है, हाउ मच रिमेन्स लॉग टू द बेस 10 a0 t हाफ के बाद बचा है a0 by 2, बचा है a0 by 2. सो a0 कट हो गया 2.303 upon t half not to the base 10. a0 cancel, so it is 1 upon 1 by 2, that is 2. 1 upon 1 by 2, 1 upon 1 by 2 is 2. सॉल्व करते हैं. t half is equal to 2.303 upon k. log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन t half is equal to 0.693 upon k. This is an expression for rate constant and half life time in first order reaction. एंड आप ध्यान दे रहे होंगे कि पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का उल्लेख ही नहीं है. मींस व्हाट? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये एक लाइन लिखना आवश्यक है. फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life time does not depends upon concentration of reactant. For first order reaction, half life time does not depends upon concentration of reactant. फिर से मैं एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूँ. Question is, derive an expression for rate constant and half life time for first order reaction. Answer. Let A gives product is a first order reaction. Then we know for first order reaction K is equal to 2.303 upon T log to the base 10 A of 0 upon A of T. When T is equal to 0, concentration कितना था? A0. After time T, concentration कितना हो गया है? A of T. और जब हाफ टाइम पीरियड बीत गया, कंसंट्रेशन कितना हुआ? a0 by 2. ये शुरू करने के पहले यहाँ पर डेफिनेशन होनी चाहिए हाफ लाइफ टाइम की. क्या है डेफिनेशन? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम. ये वैल्यूज जो है वो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. K is equal to 2.303 upon T half. T के जगह T half सब्स्टिट्यूट किया करके T के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया A0 by 2. कैंसल 1 upon 1 by 2 is a 2. So this T half इधर लेके आए, K नीचे 2.303. The value of log 2 is 0.3010. दोनों का मल्टीप्लिकेशन, टेंशन मत को मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, फार्मूला है. आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फार्मूले ये तो यूज होंगे 5 6 7 8 9 10 बार, तो आपको फार्मूला ऐसे भी याद हो जाएगा. T half is equal to 0.693 upon K, and that indicate half life time for first order reaction does not depends upon molar concentration of reactant. This is an expression for rate constant and half life time in first order reaction. अब इस एक्सप्रेशन में डेरिवेशन में कुछ डाउट, कुछ दिक्कत है, तो डाउट अगर है तो बोलिए, अगर नहीं है तो 5-6 लोग ओके 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 डाल दीजिए. अगर डाउट नहीं है तो है तो कोई पॉइंट बोल दीजिए. साहिल, हार्दिक, अथर्व, हर्षल, चेतन, ऋषभ, सही में डाउट अगर नहीं है तो बोलिए. ओम पढ़ाई, अक्षय, आकाश आकाश आकाश. ओके, सो जिसको डाउट नहीं है ये एक्सपेक्ट करते हैं. फाइन.
So this is an expression for half lifetime and rate constant in first order reaction. So टाइटल जो हमने डिस्कस किया नंबर 1 एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहला वाला k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 a of 0 upon a of t. Second expression half life time for first order reaction. The final answer is t half is equal to 0.693 upon k. Half life time for first order reaction does not depends upon concentration of reactant. Depending नहीं करता. बात करता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन छोटे डेरिवेशन से. हो बुक पेन तैयार. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Zero order reaction. Say derivation for rate constant in zero order reaction. Let A gives product is a zero order reaction. Then according to rate law, rate of reaction R is equal to minus dA upon dt directly proportional to a to the power 0. याद आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर में हमने यहाँ 1 लिखा था, जीरो ऑर्डर में हमने 0 लिखा है. सॉल्व करते हैं. माइनस dA upon dt is equal to k because किसी का भी 0 अगर पावर रहा the answer is 1. Anything to the power 0 is answer is 1. So except 0. 0 a to the power 0 is 1. ये निकल गया, बचा क्या है k कांस्टेंट. रीअरेंज करता हूं. माइनस dA is equal to k dt. नहीं भेजा माइनस उधर, उसमें भेजा था सर, उसमें भी नहीं भेजा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आने वाला है. कंडीशन फिर से when t is equal to 0 concentration of reactant was A0. After time t concentration becomes A of t. Integrate this expression within these limits. Integration minus bar d of a, lower limit is a0, upper limit is at. Clear? Which is equal to integration k dt 0 t. सॉल्व करते हैं. सिंपल. इंटीग्रेशन dx is x, तो इंटीग्रेशन dA क्या होगा a. सो दिस इज माइनस तो बाहर ही है, बड़ा ब्रैकेट a, लोअर लिमिट a of 0, अपर लिमिट a of t इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt 0 to t. कुछ नहीं समझा चैट बॉक्स में डालने चाहिए प्लीज. मैं आपको देख नहीं रहा हूं क्योंकि आपका वीडियो ऑफ है, तो आप में डेयरिंग ज्यादा होनी चाहिए सर. ये नहीं समझा ये पूछने की, सामने रहता तो डर लगता है, अभी डर गया. नहीं समझे तो नहीं समझा बोलो. अपर लिमिट पहले बाद में लोअर लिमिट, माइनस बाहर है, a of t minus a of 0 is equal to k, अपर लिमिट t minus 0. सॉल्व कर दे इसको. जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये माइनस है, माइनस और माइनस प्लस,
it became a of 0 minus a of t is equal to k into t. K into t. So this k is equal to a of 0 minus a of t upon t. This is an expression for rate constant in zero order reaction. Zero order reaction में ये expression है. फिर से एक बार क्वेश्चन के साथ आंसर. There is an expression for rate constant in zero order reaction. सबसे पहले zero order reaction की definition. The reaction in which rate of reaction does not depend upon molar concentration of reactant is called as zero order reaction. The reaction in which rate of reaction does not depend upon molar concentration of reactant is called as zero order reaction. And therefore, according to rate law, R is equal to minus dA upon dt, which is the rate of reaction, proportional to A to the power 0. क्यों? Order 0 है. Anything 0 is 1. गायब, proportion निकल गया तो K, which is the rate constant, minus dA, dt को इधर भेज दिया. Condition: when T is equal to 0, the concentration was A0. शुरुआत में रिएक्शन शुरू होने की थी. आफ्टर टाइम टी कुछ तो रिएक्टेंट चला गया होगा खाना खाने, तो प्लेट में जो था वो कम हो गया. बचा कितना? ए ऑफ टी. विद दिस कंडीशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इस एक्सप्रेशन को. इंटीग्रेशन सेम एक्सप्रेशन है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट. जब टाइम 0 था कंसंट्रेशन 10 t था. सॉल्व करते तो इट इज dx रहा तो x, dk का होगा a, लोअर लिमिट अपर लिमिट, dt को होगा t 0 टू t. अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, माइनस अंदर डाल तो स्विच हो जाएगा a0 माइनस a. k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ a0 माइनस concentration of AT upon T. This is the expression for rate constant in zero order reaction, where K is the rate constant, A0 is the initial concentration of the reactant, AT is the concentration of reactant remains after time T, and T वो समय है जहाँ A0 का A2 में कन्वर्शन होता है. This is the expression for rate constant in zero order reaction. इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं. हाफ लाइफ टाइम का रिलेशन क्या होगा, फटाक से देख लेते हैं. ये सब नोट डाउन कर रहे हैं, ये सोच रहा हूं मैं. एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ टाइम छोटा सा है. There is an expression for half life time in zero order reaction. So सबसे पहले डेफिनेशन हाफ लाइफ टाइम की. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ टाइम. फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो K is equal to A of 0 minus A of T upon T. फिर से भी लिखा मैंने. कंडीशन: at T is equal to 0, concentration of reactant was A0. After time T, concentration becomes A of T, and at T is equal to T half, यानी हाफ टाइम पीरियड. हाफ टाइम पीरियड में इनिशियल का आधा होता है, इनिशियल का आधा. तो T के बजाय मैंने T हाफ लिखना है, तो
80 के बजाय मैंने लिखना चाहिए a0/2। सब्स्टिट्यूट करता हूं, a0 माइनस a0/2 अपॉन t हाफ। पुट किया मैंने और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब t हाफ को इधर लेके आता हूं मैं। पूरा a0 माइनस आधा a0 बचेगा क्या? आधा a0 या ऊपर लिखे गया तो के नीचे, और इसी को रीअरेंज करता हूं, t हाफ इज इक्वल टू a of 0 upon 2k. This is the expression for half lifetime in zero order reaction. देखो फर्स्ट ऑर्डर का मैं यहां लिखता हूं कि t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो कहीं पर भी वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का नामो निशान नहीं है, लेकिन बाद में जीरो ऑर्डर की करूं कॉन्सेंट्रेशन है। यहां कंक्लूजन क्या होगा? half life time for zero order reaction is directly proportional to concentration of reactant. This is the expression for half life time in zero order reaction. और एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट half of the reaction is called as zero order reaction. For zero order reaction we know K is equal to A of 0 minus A of t upon t. कंडीशन शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन पूरा था, आफ्टर टाइम t becomes A of t, but t is equal to t हाफ रहा, AT कितना बचेगा? A0/2। सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा माइनस आधा इज आधा, आधा रीअरेंज कर दो। हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, ये उसका conclusion line। So this is nothing but about first order reaction, zero order reaction। first order reaction में दो derivation हमने पढ़े, derivation for rate constant in first order reaction, number 2 relation between rate constant and half life time for first order reaction। zero order में भी expression for rate constant in zero order reaction, relation between rate constant and half life time in zero order reaction। These are the derivations, numerical point of view बहुत ज्यादा important है। So it is expected कि ये चारों डेरिवेशन आपको क्लियर है। अगर क्लियर है सभी से मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूं यस और नो। तो कुछ डाउट अगर है तो आप पूछिए। चारों डेरिवेशन में कुछ दिक्कत अगर नहीं है तो ओके डाल सकते हैं, डोंट वरी। 2-3-4 लोग नहीं, सभी लोग डाल सकते हैं फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, किसी को डाउट अगर है तो डाउट बोलिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड टुवर्ड्स द असाइनमेंट। डोंट वरी, असाइनमेंट घर से ही करना है। गुड, ओके 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 ओके। चलो, किसी को डाउट है, किसी को दिक्कत अगर है तो वो लोग कमेंट कीजिए, अदरवाइज आज का ये सेशन 4 डेरिवेशन के साथ यहीं पर हम लोग समाप्त करने वाले हैं। अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा कुछ। आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, मैंने कुछ म्यूट किसी को किया नहीं है, और बोलना है तो बोल के भी आप डाउट हो सकता है। कुछ बार एक आधी डाउट लिख कर नहीं बता सकते, आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो।